Now example 7. A survey regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. So less than type cumulative frequency दिया हुआ है और जो क्लास इंटरवल में अगर इसको हम लोग कंसीडर करेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो पहला क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो वी विल राइट बिलो 140 so less than 140 and the frequency here is 4 and then we have 140 to 145. So if we have to convert this into class interval, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में लेस देन 145 11 है तो जो 11 है उसमें ये 4 भी इंक्लूडेड है तो हम लोग क्या करेंगे इस 4 को 11 से सबट्रैक्ट कर लेंगे तो 11 माइनस 4 7 हो गया जो कि इस क्लास इंटरवल में I'll repeat again less than 145 also includes which are less than 140. So that's why if we have to find the number of girls who are between 140 and 145, that will be 11 minus this value, which is already there in this previous class interval. Is it clear to everyone? सर आप इसका फॉर्मूला एक और बार समझा सकते हैं? अभी तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले ये क्लास इंटरवल लिख लो अभी हम लोग क्लास इंटरवल समझ रहे हैं कैसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था उससे हम लोग क्लास इंटरवल बना रहे हैं दूसरा है 145 to 150 इसमें 29 minus 11 18 हो जाएगा so 150 to 155 is 40 minus 29 11 हो गया 155 to 160 46 minus 46 हो गया और 160 to 165 51 minus 46 5 so ये फ्रीक्वेंसीज हो गया हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L plus N by 2 minus CF divided by F into H. So where L is the lower limit of the median class. Median class के लिए we have how many girls? 51 girls. So N is equal to 51. So N by 2 will be equal to 51 by 2. That is 25.5. So now, if you find this 25.5, अब इसका cumulative frequency अगर आप निकालोगे, so cumulative frequency is 4, 11, वो already जो दे रखा था 29, 40, 46 और 51. So 25.5 ये वाला जो number है, right? This will lie in this 11 के बाद जो 29 तक आ रहा है. So 25.5 is just less than this. So we have to see कि किस cumulative frequency से just छोटा है ये 25.5. 11 से तो छोटा नहीं, 11 से बड़ा है, 29 से छोटा है. तो ये वाला जो क्लास है, ये हमारा मीडियन क्लास हो जाता है. इसका मतलब कि 11th गर्ल के बाद हमने जो सबको अरेंज किया है हाइट के हिसाब से, तो जो 11th गर्ल के बाद 12th गर्ल ऑनवर्ड है वो सब 145 से 150 के रेंज में. सो 12th गर्ल से लेके 29th गर्ल तक इस हाइट के रेंज में हमें क्या निकालना है 25.5 और 25.5 इस नंबर पे जो गर्ल है वो किस क्लास में होगी, वो इसी क्लास में इसी हाइट के रेंज में इस क्लास इंटरवल. तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया. ये 11 जो है ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया. 18 जो है हमारा f का वैल्यू हो गया. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज f. cf इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, cumulative frequency of class preceding the median class. N by 2 we have already calculated. L is the lower limit of the median class, so this is L. So put these values here, and H is the class size. Class size here is 5. So if we put the values here, L means 145 plus N by 2, 25.5
minus of CF, that is 11, divided by F, that is 18, into H is 5. So this will give you 145 plus 14.5 into 5 upon 18. So put the values, 14.5 into 5 divided by 18. So 4.027. 149.027 value. Here, so this is the median height, जो middlemost height. अगर if we are arranging all the girls in ascending order of their height, so 149.027 centimeter is the middlemost data. जो 25th गर्ल होगी उसका ये हाइट. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. आप लोगों ने नो सर, सब बस एक सेकंड लास्ट स्टेप पे हूँ. डन सर. Now example A, the median of the following data is 525. So we have data given जिसका median already दिया हुआ है. तो पहले data लिख लेते हैं जो दिया हुआ है. Class interval 0 to 100, 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, and 900 to 1000. ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं. फ्रीक्वेंसी is given as 25x, 25x, 12, 17, 20, y 974. फ्रीक्वेंसी दे रखा है. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ऐड करते चले जाएंगे. 2 plus 5 7, यहाँ पे 7 plus x, 19 plus x, 20 36 plus x, 56 plus x, 56 plus x plus y, 65 plus x plus y, 72 plus x plus y, 76 plus x plus y. अब आपको दे रखा है टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100. तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो पहला इक्वेशन तो इसी से मिल जाएगा आपको. Sum of all this is 100. That means 76 plus x plus y is equal to 100. So this implies x plus y is equal to 24. This is the first equation which we get.
उसके बाद जो यहाँ n/2 है that is 100/2 that is 50. So 50 है ये हमारा, और जो हमारा मीडियन यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, so this is 525. तो 525 है अगर आप देखो, so मीडियन क्लास क्या हो गया, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि 500 और 600 के बीच में मीडियन का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, द मीडियन इज इक्वल टू 525. ओके, so median of the data is given, that means this class which is class interval 500 to 600, this contains the median, so this class will become our median class. Now we will use this formula for median. So median we already know is 525. Lower limit of this is 500 plus of n/2. n/2 is 50 minus cumulative frequency of the class preceding it. 50 minus 36 plus x. Okay. Divided by frequency of the median class, that is 20, into, and this class size is 100. Clear है सबको ये? Yes, sir. ना, अब 500 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, 525 minus 500 is equal to 50 minus 36, 14 minus x, divided by 20 into 100. इसको कैंसिल कर दो 25 टाइम्स, सो ये हमारा हो जाएगा 525 minus 500 is 25 is equal to 14 minus x into 5. इसको 5 बन रहा है एंड ये 5 टाइम्स, so x is equal to 14 minus 5, this is equal to 9. ये जो 9 मिल गया अब तुम्हें, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो y is equal to 24 minus 9, 15 हो जाएगा. तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 15. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो इसको अच्छे से एंड राइट. डन सर. राइट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे बुक में. लिख लिया बच्चों? Yes. Yes, sir. सभी ने लिख लिया ना, मिटा दें? Yes, sir. Yes, sir. प्रणव की आवाज नहीं आ रही है, प्रणव या नहीं है? लिख लिया, दिखाओ? दिखाओ नहीं, तुम अपना फोटो ऑन करके दिखा दो, कहाँ दिखे तो तुम कहाँ पे. हाँ हाँ वही दिखा रहा. कॉपी किताब पे लिख, कॉपी लेके बैठे हो, क्या करके बैठे हो? नहीं नहीं सब लिख रहा हूँ, दिखाता हूँ एक सेकंड. देख लिया, चलो गुड गुड. Now exercise 14.3.
लोग ग्राफ लेके बैठे हैं क्लास में? ग्राफ है आप लोग के पास? Yes, sir. सभी के पास? Yes, sir. So first of all, solve this question 2 of exercise 14.3. Exercise 14.3, question number 2. फटाफट सॉल्व करो. इसी तरीके का है जैसा हम लोग एक्स वाई वाला भी किया है ना, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है. यहाँ पे क्लास इंटरवल्स दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Frequencies are 5x20, 5x20, 15 by 5, and the sum is 60. Summation of fi is equal to 60. Cumulative frequency निकालेंगे 5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y, and 45 plus x plus y. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया. अब हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5. सो मीडियन इज 28.5. 28.5 lies between 20 and 30. So this becomes your median class. This is your cumulative frequency. This is the value of f. This is n. Now n by 2. N by 2. Total is 60. 60 by 2 is equal to 30. उसके अलावा यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारा बनेगा 45 plus x plus y is equal to 60. So x plus y is equal to 15, first equation. Now, value of the median is L plus n by 2 minus CF upon F into H. अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं. L मीडियन का वैल्यू है हमारा 28.5. So this is 28.5 is equal to L 20 plus n by 2, 30 minus CF, that is 5 plus x, divided by F. So F is equal to 20. And the class size is 10. The value of H is equal to 10. All this we'll have 28.5 minus 20 is equal to 25 minus x by 2. So 8.5 into 2 is 17 is equal to 25 minus x. X is equal to 8. X 8 हो गया तो y is equal to 7. क्लियर है बच्चों? Yes. Yes. लिख लीजिए इसको भी.
Done, sir. सभी बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Now we'll do the fourth question. यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, तो ऐसे केस में जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं होता है तो पहले उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है 118 क्लास इंटरवल इज 118 to 126। उसके बाद सेकेंड है हमारा 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180. अब the length of 40 leaves of the plant are measured correct to nearest millimeter. These are not continuous class interval. ये 126 है, ये 127 है, दोनों सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस कितना है 127 माइनस ऑफ 126, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 इसमें ऐड कर देंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो नया क्लास इंटरवल है वो क्या बन जाएगा 117.5 to 126.5। क्लियर है बच्चों? इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे किस वैल्यू को, ये जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में। क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हम लोग सेकेंड वाला जो क्लास इंटरवल होगा 126.5 से 135.5 होगा, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोग फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे और उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी है हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 359, 12, 5, 4 और 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 3, 8, 17, 29, 34, 58 और 40। हमें मीडियन यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास पहले तो n/2 निकाल लेंगे, n है हमारे पास 40, 40/2 20 हो गया। मीडियन इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग इसका ये जो 20 है 17 से बड़ा 29 से छोटा, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास।
ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, ये लोअर लिमिट। L plus n by 2 minus CF upon F into H. L is 144.5 plus n by 2 means 20 minus 17 divided by 12 into, ये जो साइज है 9 होगा, 144.5 minus 135.5 is 9. 3 4s are and 3 3s are. So this is 144.5 plus of 3 by 4 into 3. So 9 by 4. So 144.5 plus 9 by 4 means 2.25. 146.75. So this is the median. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट करना पड़ता है। अगर डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होता है, पहले उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद मीडियन निकालेंगे। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. अब तुम लोग अपना ग्राफ पेपर निकाल लो। हम लोग ओजीव्स करेंगे अभी, जो लास्ट पोर्शन इस चैप्टर का। बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में तुम लोग कर लोगे, होमवर्क है तुम्हारा। एक बच्चा भी मुझे होमवर्क नहीं भेजता है। होमवर्क मिल जाता है, तुम लोग भी उसको जो है लेकर सो जाते हो। नहीं, मैं दिखा देता हूँ होमवर्क। हाँ क्या देते हो? भेजने में क्या तुमको परेशानी है? उंगली दर्द करने लगता है? इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से फटाफट उंगली चलता है तुम लोग का। नहीं, हमको भेजने से सारा दिक्कत हो जाता है कि नहीं? सो रहे हैं उसका भी फोटो लगा देते हैं, है ना? इंस्टाग्राम पे तो हाँ नहीं ना, बता भाई, भेजेगा कि नहीं भेजेगा आज फोटो? भेजता हूँ ना, पूरा चैप्टर भेजता हूँ अभी। पूरा चैप्टर मत भेज, एक एक करके भेजेगा। उतना एक बार में भेजेगा तो देखूंगा कैसे। है? एक और फॉर्मूला है, इसको हम लोग एम्पेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं। कभी कभी एक बार क्वेश्चन आ गया था 2-3 साल पहले कि व्हाट इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है 2-3 बार। आजकल हॉट चल रहा है, तो इसको हम जल्दी से लिख लेते हैं। 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन। So this is an empirical relationship between median, mode, and लिख लिया फॉर्मूला?
एक बार तो फॉर्मूला लिखने ही आ गया था और एक बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, मोड और मीन दिया हुआ था, मीडियन निकालने बोल। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना पाओगे। लिख लिया ना सर? एक मिनट Yes. सर, वो नीचे स्टार्टिंग में क्या लिखा था? एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ओके सर। हो गया सर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल पे बेस्ड हम लोग मीन मीडियन मोड वाली चीज करेंगे, सॉरी उजीब वाली चीज करेंगे। राइट डाउन द टेबल फर्स्ट। So marks, the class interval is given as 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, and 90 to 100. We have frequencies 5, 3, 4, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9, 7, 8. So 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8. ये हम लोग को ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, तो उसके लिए पहले तो टेबल एक लिखेंगे लेस देन टाइप वाला। तो लेस देन 10 अगर हम लिखेंगे तो हम लोग बना रहे हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। So less than 10, 5 less than 20, 5 plus 3, 8 हो गया। Less than 30, 8 plus 4, 12. Less than 40, 12 plus 3, 15. Less than 50, 15 plus 3, 18. Less than 60, 18 plus 4, 22. Less than 70, 22 plus 7, 29. Less than 80, 29 plus 9, 38. Less than 90, 38 plus 7, 45. Less than 100, 45 plus 8, 50. अब हम लोग जो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, इसका एक उजीब बनता है। उजीब बनाने के लिए बेसिकली क्या है कि एक ग्राफ बनाते हैं, तो वो जब ग्राफ बनाते हैं उस ग्राफ को उजीब कहते हैं। ठीक है, लिखते उसको OGIVE है, इसका प्रोनाउंसिएशन उजीब है। ठीक है, सो नाउ सो जो ग्राफ पे एक्स और वाई एक्सिस पे इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होता है
और इधर हमारा अपर लिमिट्स है बेसिकली। तो बेसिकली लेस देन 10, 20, 30 ऐसे चल रहा है। तो आप 10 से स्टार्ट करोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड ओके। एंड ऑन वाई एक्सेस देखो 5, 8, 12 तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 53 तक गया हुआ है। तो तुम क्या करो 5, 5 पे ले लो, 5 या 10, 10 पे ही मान लो, ले लो 10, 20, 30, 40, 50 and 60. Okay, because 1 centimeter is taken as 1 unit, so you can write the numbers accordingly. Less than 10 पे 5 है, मतलब 10 वाले पे तुमको क्या करना है, 5 को ले जाके मार्क कर देना ये पॉइंट। ओके राइट, ये 5 वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से एक लाइन लेके जाना, इधर से ऐसे लाइन लेके जाना। उसके बाद लेस देन 20 पे 8 है। अब 8 इज somewhere here. So this is the point, second point. Then we have 30 पे 12 है, 12 is somewhere here. This is the point. Then less than 40 पे 15 है, 15 is somewhere here. And then we have 50 पे 18. Then 60 पे 22. $70 पे 29. Then we have 80 पे 38. $90 पे हमारा 45 है। और 100 पे हमारा 53 है। उसके बाद इस पूरे को फ्री हैंड से ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं, कोई लाइन नहीं बनाएंगे, इस तरह से फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर। तो ये जो हमारा ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं लेस देन टाइप क्लियर है बच्चों? पहले इसको बना लो, फिर इसके आगे बताएंगे। So this was the data given. हम लोगों ने लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और उसको हम लोगों ने प्लॉट कर लिया इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ बना है इसको लेस देन टाइप ओजीव कहते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों। बना लिया सर। सर एक मिनट। हाँ बनाओ बनाओ। ऐसे ये डॉट डॉट लाइन बनाना जरूरी है क्या? डॉट डॉट लाइन तुम लोग को नहीं बनाना, मैं तो अपने अंदाजे के लिए बना रहा था, तुम लोग में तो ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ रहता है ना। हाँ फिर बन गया सर। क्योंकि डॉट डॉट लाइन से और मतलब थोड़ी गंदी हो जाएगी, तुम बनाने समझ नहीं आएगा तुमको एकदम।
क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो हम लोग को निकालना है इसमें OG बनाते क्यों है? मीडियन निकालने के लिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? My call dropped. मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे बनाना है. Can you just explain it? Yeah. What we had to do is, this you understood how to make less than type. Yes. Yes. Now the number here 10, less than 10, how many numbers are there? 5. So what you will do, ये इधर y axis पे आप cumulative frequency को plot कर लो. तो हमें पता है total 53 है, right? Total 53 है, तो इसको 60 तक plot करके छोड़ दिया है. और यहाँ पे because 10 से लेके 100 तक है, तो इधर 0 से लेके 100 तक हमने plot किया, right? 1 सेंटीमीटर. 10 पे हमारा क्या पॉइंट है? 5 है, तो ये 5 लेके यहाँ पे जो 5 था 0 और 10 के बीच में जो रहा होगा पॉइंट, उससे हमने ये पॉइंट को ज्वाइन करके ये पॉइंट निकाला. Okay, उसके 20 पे हम लोगों ने प्लॉट कर लिया 8, 30 पे हमने 12, 40 पे 15 and so on. We have just plotted these. Okay. And then we have joined it by a freehand diagram. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Type OG. Okay, thank you, sir. Now let's come to how to find the median in this. To find the median, we know 53 n is equal to 53 है. Median क्या होता है? जहाँ पे n/2 वाला डेटा है, मतलब 53/2, 26.5 वाला डेटा हम लोग को ढूंढना है. 26.5, तो ये देखो 26.5 इसमें प्लॉट कर दो. यहाँ पे y एक्सिस पे 26.5, 25 और 26, 27 के बीच में जो है उस पॉइंट को लेके वहां से हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है? और उस पॉइंट से हम लोग इसको नीचे लेके आएंगे, जहां पे ये इसको हिट कर रहा होगा उससे नीचे लेके आएंगे यहाँ, राइट? सो 26.5 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाएंगे, जहां पे ये ग्राफ को टच कर रहा होगा उस पॉइंट से एक लाइन हम लोग वर्टिकली ड्रॉप करेंगे. ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज बेसिकली योर मीडियन. तो ये पॉइंट देखोगे अगर तुम लोग, तो 66 के आसपास आएगा. तो यहाँ पे आंसर में जो दे रखा है 66.4. तो तुम तो बिकॉज 66.4 तुम नहीं मेजर कर पा रहे होगे, 66 तक तुमको मेजर करके आएगा. बना के देखो, 66, 67 के अराउंड आना चाहिए. मतलब 26.5 वाले पॉइंट से वहां से स्ट्रेट लाइन लेके जाओ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस, और फिर एक लाइन यहाँ से ड्रॉप करो परपेंडिकुलर जो कि y एक्सिस के पैरेलल, और उससे हमें मीडियन निकल के आएगा 66, बिटवीन 66 and 67. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. 67 आया है. हाँ, 66 या 67 आ रहा है तब तक ठीक है. सो एक और बार समझा देंगे. लोगों ने क्या किया, n टोटल नंबर ऑफ डेटा 53 था हमारे पास. ये n जो है दिस इज 53. हमने n/2 निकाला 26.5. तो मिडिल मोस्ट डेटा ढूंढना है ना. तो मिडिल मोस्ट डेटा तो जो कि 53 का हाफ 26.5 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो लाने के लिए 26.5 से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. जहां ग्राफ को कट करेगा वहां से हम लोग एक वर्टिकल लाइन बना लेंगे, जो जहां पे ये x एक्सिस को टच कर रहा होगा वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट हमारा मीडियन. क्लियर? अब हम लोग इसी में मोर देन टाइप ओजीव करेंगे इसी ग्राफ में. तो पहले उसके लिए हम लोग मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, है ना? तुम लोग भी उसी ग्राफ पे बनाओगे, बस टेबल अलग से लिख लो. मोर देन 0, 0 से ज्यादा सारे हो गए 53, सारा डेटा 0 से बड़ा है. मोर देन 0, मोर देन 10, 53 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लो 48,
more than 20, 48 minus 3, 48 minus 3, 45 हो गया, more than 30, 45 minus 4, 41, more than 40, 41 minus 3, 38, more than 50, 38 minus 3, 35, more than 60, 35 minus 4, 31, more than 70, 31 minus 7, 24, more than 80, 24 minus 9, 15, more than 90, 15 minus 7, 8, इसके बराबर ही आएगा। अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, मैं दूसरे कलर से प्लॉट कर लेता हूं, ठीक है। सो मोर देन 0, 53, तो 0 पे ये कहां जाएगा, 53 पे जाएगा, तो ये पॉइंट हम लोग पॉइंट कर लेते हैं, पहला पॉइंट 53। क्लियर है बच्चों? मोर देन 10, 10 पे 48 है, 48 पे आ जाओ, 48 मतलब ये 10 पे, ये यहां पे कहीं पॉइंट होगा 40। मोर देन 20, 45 हो गया, 40 और 50 के बीच में, मोर देन 20, 45 हो गया, मोर देन 30, 41 है, मोर देन 30, 41 है, मोर देन 40, 38 है, मोर देन 40, 38 है, मोर देन 50, 35 है, अब मोर देन 60, 31 प्लॉट करेंगे, मोर देन 70, 24 हो गया, ठीक है, और मोर देन 80, 15 हो गया, मोर देन 98 हो गया। इन सबको ज्वाइन कर दो। अब आप देखोगे कि ये जो मोर देन टाइप और लेस देन टाइप ओजीव है ना, ये एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। दिस इज नोन एज मोर देन टाइप ओजीव, मोर देन टाइप। So the point at which the less than type ogive and more than type ogive meet, this point is, उस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस पे, तो वो हमें मीडियन देता है। ये दूसरा मीडियन निकालने का तरीका। पहला तरीका था क्या, n/2 से हम लोग एक लाइन लेके जाएंगे, जहां पे ये लेस देन टाइप या मोर देन टाइप को हिट करेगा, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे x एक्सिस पे, तो वो मीडियन दे देगा। तुम अगर लेस देन टाइप मोर देन टाइप बनाए हुए हो, तो डायरेक्टली भी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे डायरेक्टली एक लाइन नीचे गिरा देंगे y x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, तो वो हमें मीडियन दे देगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया मैजिक ट्रिक था, मेरा एकदम परफेक्ट बन गया। बहुत अच्छा। तो बेसिकली क्या है, तुमको ये लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मोर देन टाइप भी बना लेते, तो जहां पे दोनों ये मीट करेगा उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे एक्स एक्सिस पे, वो मीडियन देते। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान में रखना, आई एम सॉरी, ये ध्यान में रखना कि लेस देन टाइप वाले में 10 से शुरू हो रहा है, देखो, मोर देन टाइप वाले में 0 से शुरू हो रहा है। ये डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग 100 तक जा रहे हैं और यहाँ पे 90 तक ही जा रहे हैं। तो बेसिकली इस डेटा के हिसाब से हम लोग प्लॉट करें। क्लियर है बच्चों? यस सर। अगली क्लास में एक एग्जांपल और कर लेंगे और 1-2 क्वेश्चन बुक से भी कर लेंगे, तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम लोग प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं इनफैक्ट।
प्लीज ये सर्कल्स करवा दो तो नेक्स्ट चैप्टर पेपर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी में 1 दिन लगेगा, इतने दिन जब तुम वेट किए हो 1 दिन और वेट कर लो। तुम्हारा एग्जाम कब है? 14 तारीख को। सर हमारे शुरू हो रहे हैं 14 से। हाँ, शुरू हो रहा है 14 तारीख से ना, अभी बहुत दिन है भाई। सर्कल्स आराम से कर लेंगे, सर्कल में भी 2 ही ओके सर। प्रोबेबिलिटी 2 दिन लगेगा मैक्सिमम। सर्कल थोड़ा लंबा है, 4-5 दिन लगेगा। प्रोबेबिलिटी करने दो, क्योंकि जिसका प्रोबेबिलिटी है वो पहले एग्जाम में उनका। सर नेक्स्ट क्लास हमारा टेस्ट है ना? हाँ, नेक्स्ट क्लास टेस्ट। ये हो गया सबका? यस सर। इनका हो गया, जा सकते हैं उनकी छुट्टी। सर क्या का टेस्ट है? क्या का टेस्ट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेस्ट है।